চিত্তোরগড় ইতিহাসের বুকে লেখা এক নাম, যেখানে বীরত্ব আর আত্মত্যাগ আজও নিঃশব্দে প্রতিধ্বনিত হয়। এখানকার প্রতিটি দেওয়াল, প্রতিটি ধ্বংসাবশেষ এক একটা গল্পের নীরব সাক্ষী। এই ভ্লগে আমি আপনাদের নিয়ে চলেছি সেই অতীতের পথ ধরে, যেখানে রাজপুত রাজাদের বীরগাথার সঙ্গে সঙ্গে রয়ে গেছে শতরানীদের আত্মবলিদানের ইতিহাস। 22শে ডিসেম্বর 2024 সকালবেলা ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে আমরা জয়পুর থেকে উদয়পুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিই, আর যাওয়ার পথে ঘুরে নিই চিত্তোরগড় ফোর্ট। সেই গল্পই তুলে ধরবো আজ এই এপিসোডে। ये हम निकल गए ना, ये ओल्ड सिटी से अपन निकल गए। জয়পুর থেকে আমরা যখন স্টার্ট করি তখন বাজে ঘড়িতে সকাল 9:12, আর আমরা যখন চিত্তোরগড় পৌঁছাই তখন বাজে বিকেল 4:10। এই পুরো যাত্রাপথে আমরা শুধু ছোট্ট একটা স্ন্যাক্স ব্রেক নিয়েছিলাম আধ ঘন্টা মতো। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, সেদিনকে রাস্তায় একটা বড় অ্যাক্সিডেন্টের কারণে ট্রাফিক খুব বেশি ছিল। এছাড়াও পিক টাইম হওয়ায় চিত্তোরগড় ফোর্টের মধ্যেও ট্রাফিক ইউজুয়ালের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। সেই জন্য আমাদের প্রায় 7 ঘন্টা লেগে গেছে জয়পুর থেকে চিত্তোরগড় পৌঁছাতে। নর্মাল ট্রাফিকে জয়পুর থেকে চিত্তোরগড় যেতে 5 থেকে 6 ঘন্টার মতো লাগা উচিত। আপনারা সেই হিসাব মতোই আপনাদের ট্যুরটা প্ল্যান করতে পারেন। আমরা এখন জয়পুর থেকে উদয়পুর যাচ্ছি। যাওয়ার পথে এখানে একটু চা কফি স্ন্যাক্স খাওয়ার জন্য দাঁড়ালাম। এই জায়গাটার নাম কিষানগড়। এখন বাজে দুপুর 12টা। আজকে প্ল্যান ছিল উদয়পুর যাওয়ার পথে চিত্তোরগড় হয়ে যাব, কিন্তু চিত্তোরগড় এখান থেকে এখনও 3 ঘন্টা। কিষানগড়ে এখন আছি আমরা, এখান থেকে এখনও 3 ঘন্টা। তো দেখা যাক পৌঁছাতে পারি কিনা টাইমে। যদি পৌঁছাতে পারি তাহলে চিত্তোরগড় দেখে তারপরে উদয়পুর যাব। দেখা যাক কি হয়। রাস্তায় আনইউজুয়াল ট্রাফিকের জন্য একটু চিন্তাতেই ছিলাম যে সূর্য ডোবার আগে চিত্তোরগড় পৌঁছাতে আদৌ পারবো নাকি। সব আশঙ্কা কাটিয়ে যখন আমরা অলমোস্ট চিত্তোরগড় সিটির কাছে পৌঁছে যাই তখন ঘড়িতে বাজে বিকেল 3:30। এখন আমরা ঢুকছি চিত্তোরগড় সিটিতে। খেয়াল করে দেখুন, ওই যে ওপরে চিত্তোরগড় দুর্গের প্রাচীর দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে পাহাড়ের ওপরে চিত্তোরগড় দুর্গ অবধি যেতে ট্রাফিকের জন্য আমাদের আরও 45 মিনিটস লেগে গেছিল। ডিসেম্বর মাস এবং রবিবার হওয়ায় ট্রাফিক ইউজুয়ালের থেকে অনেকটাই বেশি ছিল এখানে। নইলে চিত্তোরগড় সিটি থেকে চিত্তোরগড় দুর্গ অবধি গাড়ি নিয়ে উঠতে আরও অনেকটাই কম সময় লাগে। চিত্তোরগড় ঘুরতে এলে খেয়াল রাখবেন, এখানে কিন্তু অনেক ভুয়ো গাইডও ঘুরে বেড়ায়, যারা ট্যুরিস্টদের জিনিসপত্র নিয়ে অনেক সময় পালিয়ে যায়, অ্যাবনর্মাল ফিস চার্জ করে, আরও অনেক কিছু কমপ্লেন্টস আছে। তাই গাইড হায়ার করার আগে তাদের কাছ থেকে গভর্নমেন্টের দেওয়া আইডি, যেখানে মেনশন করা আছে উনি চিত্তোরগড়ের গভর্নমেন্ট অথরাইজড গাইড, সেই আইডিটা অবশ্যই দেখে নেবেন। আমি এই নিয়ে দ্বিতীয়বার চিত্তোরগড় ঘুরতে এলাম, আর দুবারই আমাকে গাইড ঠিক করে দিয়েছিলেন আমাদের ড্রাইভার সাহেব। দুবারই আমি অথরাইজড গাইডই পেয়েছি এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো ছিল। আস্তে আস্তে ট্রাফিক কাটিয়ে আমরা এগিয়ে চলি চিত্তোরগড় দুর্গের ভেতরের দিকে। চিত্তোরগড়ের অসামান্য ইতিহাস আর তার সঙ্গে বলিউডের একটা যোগাযোগ, যেমন পদ্মাবত, আবার ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি সেই বিখ্যাত বানি আর নয়নার সানসেট সিন এখানেই শুট হওয়া, সব মিলিয়ে চিত্তোরগড় আমার কাছে একটা খুব স্পেশাল জায়গা। তাই চিত্তোরগড়ে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এসেও আমার এক্সাইটমেন্ট কিন্তু সেই প্রথমবারের মতোই ছিল। এরপর আমরা পৌঁছে যাই चित्तौड़गढ़ फर्स्ट साइट सीइंग पॉइंट। वेलकम टू फोर्ट चित्तौड़गढ़। आप जो फोर्ट विज़िट के लिए आप आए हैं, ये फोर्ट एशियाज़ का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है। ओके। यहाँ पे आपको उदयपुर जयपुर की तरह लग्जरी म्यूज़ियम गार्डन्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। देखने के लिए यहाँ पर ओनली फॉर स्टोन है और सुनने के लिए हिस्ट्री है। आपने जो एंट्रेंस किया है वो फोर्ट का बैक साइड एरिया है। फोर्ट का जो मेन एंट्रेंस है वो ईस्ट में, जो सबसे लास्ट में अपन चलेंगे। इनसाइड फोर्ट में टोटली 113 टेम्पल्स है, छोटे बड़े टूटे फूटे सभी मिलाकर, एंड 84 वाटर रिजोर्ट टैंक है। ये कम्प्लीटली 1 हिल्स पे बना हुआ है, जिसे कहते हैं मैसा हिल्स। फोर्ट बॉम्बे की सी लेवल से 1850 फीट की हाइट पे, चित्तौड़गढ़ का जो वैल लेवल है उससे 580 फीट की हाइट पे फोर्ट है। एशियाज़ का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है इन हिस्ट्री। समथिंग 1600 ईयर्स ओल्ड फोर्ट है ये। फोर्ट पूरा निवास एरिया है। समथिंग ऑल टाइम में 70,000 पॉपुलेशन यहाँ इनसाइड फोर्ट में
निवास करते थे। 40,000 यहाँ के सोल्जर्स थे एंड 30,000 समथिंग यहाँ पर लेडीज़ एंड चिल्ड्रंस थे। प्रेजेंट टाइम में फोर्ट 3 पार्ट डिवाइडेड है। फर्स्ट लिविंग एरिया समथिंग 3 to 4,000 पब्लिक अभी भी इनसाइड फोर्ट में रहते हैं। सेकंड मोनूमेंट्स एरिया एंड थर्ड फॉरेस्ट एरिया। राजस्थान 4 पार्ट डिवाइड है। मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी एंड हाड़ौती। अभी जो आप विजिट करें मेवाड़, मेवाड़ अपने स्वाभिमान के लिए जाना जाता है। यहाँ के राजपूत किंग्स सर कटना मंजूर करते हैं लेकिन सर झुकाना नहीं। यहाँ पर लेडीज़ जौहर करना बेटर समझते हैं बट किसी एनिमीज़ के साथ में वो जाना बेटर नहीं समझते हैं। फोर्ट का जो फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है वो फिफ्थ सेंचुरी के अंदर में यहाँ के मौर्य डायनेस्टी किंग चित्रांगदा मौर्य के द्वारा। उस समय इस फोर्ट का नाम था चित्रकूट। 3 चित्रकूटे, 1 चित्रकूट इन हैदराबाद, सेकंड यूपी एंड थर्ड चित्तौड़गढ़ जो आप घूम रहे हैं। सो 5th to 7th सेंचुरी जो रूलिंग पावर में थे यहाँ के मौर्यवंशी राजा एंड 8th to 16th सेंचुरी यहाँ के जो सन डायनेस्टी किंग्स थे उन्होंने यहाँ पर रूल किया था। टोटली 52 राजपूताना किंग्स ने यहाँ पे रूल किया है। 1 टाइम राजपूताना लेडीज़ ने यहाँ पे रूल किया है एंड 3 टाइम यहाँ पर एनिमीज़ ने रूल किया है एंड 30 टाइम फोर्ट पे अटैक्स हुए थे ऑल टाइम में। समथिंग 27 जो अटैक थे वो मेवाड़ के राजपूताना किंग्स ने विन किए एंड 3 जो अटैक थे वो एनिमीज़ ने विन किए एंड 3 टाइम यहाँ पर जौहर हुए हैं। आपने पद्मावत मूवी देखा होगा बट आपसे मेरा रिक्वेस्ट है जो मूवी आपने देखा है उसका शूटिंग इनसाइड फोर्ट में नहीं हुआ था। सो आप माइंड करेंगे कि जैसा हमने मूवी में देखा है वैसा यहाँ देखने को मिले तो ये वो यहाँ पर आपको पॉसिबल नहीं होने वाला क्योंकि उसका शूट अलग उन्होंने सेटअप बनाया था। अभी रॉयल फैमिली पैलेस कुंभा पैलेस पर अपन एंट्रेंस करेंगे। ओके, ফোর্টে যে প্যালেসটাতে এখন আমরা যাচ্ছি এটাকে বলা হয় কুম্ভা প্যালেস। फोर्ट इनसाइड में 30 टाइम्स यहाँ पर अटैक्स हुए थे। समथिंग 27 जो अटैक थे वो यहाँ के राजपूताना किंग्स ने विन किए एंड 3 टाइम यहाँ पर एनिमीज ने विन किया था एंड 3 टाइम यहाँ पर जौहर हुए थे। फर्स्ट टाइम अटैक हुआ था इन 1303 अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन, अच्छा। उस समय यहाँ के रूलर थे रावल रतन सिंह जी एंड रतन सिंह जी की मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिंसेस थी प्रिंसेस पद्मनी जिसे सब पद्मावती कहते हैं। हाँ। सो पार्क के स्वाभिमान के लिए अपने आप को किसी दुश्मन के साथ में जाना बेटर नहीं समझ के समथिंग 1 to 6 मंथ के अंदर में 16,000 लेडीज़ के साथ जौहर किया था। जौहर क्यों किया जाता है? स्वाभिमान के लिए। कोई दुश्मन हमें टच ना कर पाए तो यहाँ की राजपूताना लेडीज़ जिसे कहते हैं शतरानी, तो उन्होंने यहाँ पर जौहर किया था फर्स्ट टाइम इन 1303 के अंदर में। फर्स्ट जो जौहर हुआ था इंडिया में वो 1301 रणथंबोर फोर्ट के अंदर में हुआ था बट वहाँ की रानियों ने जल जौहर किया था। उस समय जल जौहर करने के बाद भी उनकी जब बॉडी पानी के ऊपर में तैरती हुई आई तो उनके साथ खिलजी की सेनाओं ने शोषण किया था। तो ये चीज़ यहाँ के मेवाड़ के राजपूताना किंग्स और यहाँ की लेडीज़ ने अग्नि जौहर किया ताकि वो हमारी बॉडीज़ को, हमारी बाउंस को, जो राख और हड्डियाँ हैं उनको टच नहीं कर पाए, तो अग्नि जौहर को अपनाया है। কুম্ভা প্যালেসে ঢুকে একটু এগিয়েই আপনারা এই জায়গাটা দেখতে পাবেন। এখান দিয়ে রানীদের গোমুখ কুণ্ডে স্নান করতে যাওয়ার রাস্তা ছিল, এখন এটা গভর্নমেন্ট থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এরপরেই আপনারা দেখতে পাবেন এই 3 স্টোরি প্যালেস। এটাকে বলা হতো জানানা महल, কারণ এখানে রানী তার দাসীদের সঙ্গে বসবাস করতেন। এটা কিন্তু ফটোগ্রাফির একটা খুব সুন্দর জায়গা। पुताना किंग्स और क्वींस कभी भी अपनी जो मैड्स और उनके सोल्जर्स जो होते थे उनके साथ भेदभाव नहीं करते थे। आप हमारी रानी हैं तो रानी के लिए दासी ही रानी है और दासी के लिए रानी ही दासी है। पूरी बिल्डिंग पहले प्रॉपर बना हुआ था, अच्छा, पर टाइम के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस नहीं होने के कारण धीरे धीरे सारा रुइंग्स हुआ है। ये आप नीचे पे स्पेस देखते हैं, यहाँ पे जो बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते थे उनको यहाँ पे आर्म्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी स्पेस में नीचे में। नीचे, यस। और ये पूरा पैलेस था जहाँ लेडीज़ जेंट्स सभी साथ में रहते थे और सामने में टावर ऑफ विक्ट्री है, हाँ। वो भी इंक्लूडिंग इन पैलेस था बट फॉरेस्ट एरिया होने का उसका वे अलग से कर दिया गया। अच्छा। और आपने सबसे पुराना मूवी देखा होगा गाइड, हाँ। गाना सॉन्ग आज भी जीने की तमन्ना, आज भी जीने की तमन्ना, आज भी मरने का इरादा है, हाँ। उसका शूटिंग सामने में हुआ था। व्हाइट बॉक्स आप देखते हैं, हाँ। और ये मेवाड़ जो है, मेवाड़ जो आप विजिट करने के लिए आए, ये है शक्ति, भक्ति, बलिदान, त्याग एंड दानवीरता की भूमि है दुर्ग चित्तौड़गढ़। शक्ति में महाराणा प्रताप जो अपना एक थाई होता है उनको कलाई था। भक्ति में मीराबाई जो कृष्ण भक्ति पूजा में लीनी हुई थी, जो नेक्स्ट अपन उनके मंदिर चलेंगे। बलिदान में लेडीज़ जो कल का माइंड कर नहीं करके आज जौहर के लिए रेडी रहती थी। त्याग में माँ पन्ना, पन्ना महाराणा प्रताप के फादर महाराणा उदय सिंह जी की दायमा होती है। दायमा मीन्स बेबी केयरटेकर। और पन्ना का ही एक बेटा होता है चंदन,
वो एक गुजर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो मेवाड़ का जो हार्ड टाइम था, कठिन समय था, वो 15th सेंचुरी महाराणा संगाक जी की डेथ होना, राणा प्रताप के ग्रैंडफादर की, उनकी वाइफ। तो इसी पैलेस में द्रात्री पन्ना दायमा ने अपने स्वयं के बेटे चंदन का बलिदान देकर राणा उदय सिंह जी को बचाया था। इस माँ के बारे में कहते हैं कि पन्ना को त्याग न हो तो उदियो रे जातो सूतो, और वंश महाराणा ना हो तो। अगर पन्ना अपने बेटे का बलिदान नहीं करती, स्वामित्व का बलिदान नहीं करती, उदय सिंह जी नहीं होते, उदय सिंह जी नहीं होते तो महाराणा प्रताप नहीं होते, और प्रताप वो माँ थी जिसे स्वयं के स्वामित्व का बलिदान देकर राणा जी को बचाया था। वो यही पैलेस है पूरा। এটা হলো পান্না প্যালেস, আর উল্টো দিকেই ইয়ে জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি সেই শুটিং স্পট যেখানে বিখ্যাত সানসেট সিনটা শুট হয়েছিল। এখান থেকে চিত্তরগড় সিটির একটা সুন্দর ভিউ পাওয়া যায়। সময়ের অভাবে সেদিন আমি ভিডিও করতে পারিনি, তাই আমার আগের ট্রিপের ফটোগুলোই আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। ये फूड स्टोरेज है इस पैलेस के लिए ओनली फॉर, और पूरी फोर्ट का जो फूड स्टोरेज है वो आउटसाइड में आपको मैं दिखाऊंगा। अच्छा, और यहाँ पे राजा खड़े होके पूजा करते थे ना, विदाउट एनी चेयर। हाँ यस, अभी जो लोकल पब्लिक जो जाती है हाँ। तो उन्होंने कितना स्टाइल लगा हुआ है, बट राणा लोग खड़े होके पूजा करते थे। खड़े होके यस, और आपने नीलकंठ महादेव मंदिर देखा कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ नहीं गए। कुंभलगढ़ में एक शिवलिंग है 6 फीट का, हाँ। तो महाराणा कुंभा उसे अपने दोनों हैंड में कवर करके उसकी वर्शिप करते थे। अच्छा, आप ये देखिए, ये पूरा बिल्डिंग्स पे जाने के लिए स्टेयर्स बने हुए थे, हाँ। यहाँ से बिल्डिंग पे जाने के लिए स्टेयर्स बने हुए थे, बट टाइम के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस नहीं होने के धीरे धीरे पूरा ये रंग्स हुआ था। ओके। इस पैलेस को कुंभल पैलेस कुंभा पैलेस, कुंभा महाराणा कुंभा जी ने इसका रेनोवेशन किया था 14th सेंचुरी में। ठीक है। यस, बड़े से एक बुल को स्टोन से कनेक्टिविटी करके घुमा के अनाज वगैरह पिसना यहाँ होता था उस जमाने में। अच्छा, और सामने में जो टर्म देख रहे हैं आप, हाँ। उस पैलेस पूरे फोर्ट का फूड स्टोरेज है। फाइट फ्रंट में होता था, प्रोटेक्शन बैक साइड में, तो लेडीज प्रोटेक्शन, फूडिंग प्रोटेक्शन, क्योंकि एडवांस में उनको स्टोरेज रखना होता था। यहाँ फार्मिंग नहीं होती थी, हिल्स एरिया है, तो एडवांस फूड स्टोरेज वहाँ पे रखा जाता है। इसे बोलते हैं नवलखा भंडार। सामने वो वाला, हाँ वो जी। वाला। ठीक है। ये देखिए सामने में जो आप टावर देखते हैं, ये टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ है। महाराणा कुंभा जो थे वो 2 स्टेट विन करके आए थे वन टाइम में, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। मध्य प्रदेश के महमूद खिलजी एंड गुजरात के अहमद शाह अब्दाली, उन दोनों एनिमीज को वन टाइम में विन किया था कुंभा राणा ने। सो विन को मेमोरेबल बनाने के लिए टावर ऑफ विक्ट्री को बिल्ड किया था। टावर कंस्ट्रक्शन टाइमिंग है 10 ईयर्स। एरिया देखते हैं, हाँ। वो यहाँ का क्रिमिनेशन पैलेस है, शमशान भूमि है। अब थोड़ा आगे आ जाइए, हाँ। और ये जो कैंपस है, यहाँ पर पहले 30 to 40 फीट डीपली हॉल था। सो जो 3 बार जो जौहर हुए, जब जौहर हुआ तो मैम आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। सो 1965 के वॉर में यहाँ से खुदाई की गई, समथिंग 70 फीट गवर्नमेंट एंड किंग्स के द्वारा। तो यहाँ से खुदाई के दौरान बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ से उनके एश, ऑर्नामेंट्स, बाउंस, उनके क्लॉथ क्वांटिटी में यहाँ से रिसीव हुए। तो उससे ये प्रूफ हुआ कि यही जौहर स्थल है। पूरा 70 फीट डेप्थ ओपन रखना पॉसिबल नहीं था, सो गवर्नमेंट ने इसको पूरा ब्लॉक किया। एक इसके बीच में छोटा सा कुंड बनाया हो, सामने आप देखेंगे, हाँ। अभी भी एक फेयर होता है जौहर मेला। नेक्स्ट 25 मार्च 2025 में जो 25 मार्च आएगा उस दिन फेयर होगा। सो राजपूताना कम्युनिटी, अदर कम्युनिटी सब यहाँ पर आते हैं, जौहर की श्रद्धांजलि को अर्पित करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत से टूरिस्ट के माइंड में ये डाइवर्ट होता है कि जौहर लेडीज़ ने किया तो हॉन्टेड प्लेसेस होगा, बट ऐसा नहीं है। तो शांति के लिए पीपल का पेड़ लगाया गया ताकि यहाँ पर शांति बनी हुई रहे। কুম্ভা প্যালেস থেকে বিজয় স্তম্ভ আর জহর স্থল এই জায়গাটায় গাড়ি করে আসতে হয়। আপনাদের কাছে যদি গাড়ি না থাকে তাহলে ওখানে অটো অ্যাভেলেবল, আপনারা অটো করেও এখানে আসতে পারেন। বিজয় স্তম্ভের ঠিক উল্টো দিকেই এই যে মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছেন, এই মন্দিরের বিগ্রহের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বিগ্রহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ 3 জনের মুখ একসঙ্গে রয়েছে। ত্রিদেবের এরকম সহাবস্থান শুধুমাত্র চিত্তরগড়ের এই মন্দিরেই পাওয়া যায়। তাই চিত্তরগড় গেলে এই মন্দির দর্শন মাস্ট ভিজিট। মন্দিরের ভিতরে ফটোগ্রাফি তো অ্যালাউ নয়, তাই আমি বিগ্রহের ভিডিও করতে তো পারিনি, তবে আপনারা চিত্তরগড় এলে এই মন্দিরটা একদম মিস করবেন না। এই মন্দিরের আরেকটা স্পেশালিটি হলো এর অপূর্ব আর্কিটেকচার। আমাদের গাইড সাহেব আমাদেরকে এই আর্কিটেকচারও খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেন করে দেন। आसन लॉटस का आर्किटेक्चर दिया है, हाँ। लायंस, डू एंड डाव के लिए कहाँ है एलिफेंट्स, ये रहे, ये वाला लोटस, लॉटस ये नीचे लॉटस फ्लावर आर्किटेक्चर, हाँ। और ये एलिफेंट्स फॉर स्टैंड मजबूती के लिए, हाँ। फाइटिंग्स के दिए गए, लेडीज डांसिंग, अच्छा, लेडीज ऑर्नामेंट्स आर्किटेक्चर, हाँ। एंड लास्ट उस जमाने के हेवंस जो एंजल्स जो होती थी उनको ऊपर में दर्शाया गया है। एंजल्स। यस मैडम।
उस ज़माने की जो अप्सराएँ होती थी, हाँ। क्योंकि यहाँ के टेम्पल्स पे सारे यहाँ के कल्चर्स को दर्शाया जाता था। अच्छा। भगवान के साथ साथ यहाँ के जो कल्चर पहले की जो पद्धति चलती थी उसको। आप इधर आप आएंगे, वाह। ये उसी 11th सेंचुरी का आर्किटेक्चर है। बाप रे, इतना दिन पहले से? यस, बट देखिए एनिमीज ने फेस आइज लेग्स उनको डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि हिंदू डायनेस्टी में इस स्टैचू के डिस्ट्रॉय होने के बाद में उसकी वर्शिप नहीं करते। गणपति विद फैमिली, रिद्धि सिद्धि टू वाइफ, शोभा लाभ सन, और ये जैनिज्म का आर्किटेक्चर दिया गया। यहाँ जैनिज्म। यस। আচ্ছা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের এই মন্দিরের পাশ দিয়েই গোমুখ কুণ্ডের রাস্তা। एक सेकंड भैया, এই রাস্তাটা যাচ্ছে, ওইটা মন্দির আর ওর পাশ ये দিয়ে गौमुख এটা कुंडे রাস্তা। जो कुंभा पैलेस जो देखा अपन ने, लेडीज बहू सभी यहाँ पे नहाने के लिए आते थे। तो इस कुंड के बारे में कहा जाता है कि जरना जरे गौमुख भरे, निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ करोड़ तपस्या करे, जद पावे गढ़ चित्तौड़। यानी कितनी आप तपो तपस्या करते हैं, आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने के लिए मिलता है। ये रीमेंटेनेंस बाउंड्री वॉल है। अच्छा। यस, और ये फोटो नॉर्मली होटल रेस्टोरेंट गूगल्स पे आपको देखने के लिए मिलता है। और वो चीफ कमांडर जयमल जी एंड कलाजी के पैलेस है। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের মন্দির থেকে বেরিয়ে তার পাশেই এখানে রয়েছে জহর স্থল। জহরের পুরো ইতিহাস এখানে আপনারা এই বোর্ডে দেখতে পাবেন। আমাদের নেক্সট গন্তব্য ছিল রানী পদ্মিনীর সামার প্যালেস। তো আমরা এখন এসেছি রানী পদ্মিনী। আচ্ছা, রানীর নাম পদ্মাবতী নয়, ওটা মুভিতে দেখিয়েছে। রানীর অরিজিনাল ওদের নেম পদ্মিনী, right সরি ফর দ্য নয়েজ। তো রানী পদ্মিনীর যে মহল, আমরা এখন সেই মহল ভিজিট করতে এসেছি। বিজয়স্থান থেকে রানী পদ্মিনীর সামার প্যালেস অবধি গাড়ি বা অটো করিয়ে যেতে হয়, হেঁটে যাওয়া অ্যালাউড নয়। যাওয়ার পথে পড়ে মা কালীর মন্দির, আপনারা চাইলে মায়ের মন্দির দর্শন করতেই পারেন। আমরা ভিড় বেশি এবং হাতে সময় কম থাকায় এবারে আর দর্শন করে উঠতে পারিনি। यहाँ पे ये बोर्ड चेंज किया गया। हाँ। पहले यहाँ पे भी गवर्नमेंट के बोर्ड में लिखा था कि रानी पद्मिनी का चेहरा अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ से बाय रिफ्लेक्शन द्वारा दिखाया गया। वो गलत था, तो गवर्नमेंट ने भी ये बोर्ड चेंज किया है। देखिए न्यू लगाया गया आप, वो पूरा फेक है। अच्छा, वो एकदम सही नहीं है? नहीं वो मैडम, आइए। हाँ। उस अपने देखे এখানে बड़े টিকিট নিতে बड़े দেখতে চাইবে, काम টিকিট कुछ দেখিয়ে करना আমাদের ভেতরে যেতে হবে। पड़े ना या पड़े ना। 40 रुपीज़ पर मेंबर आपका टिकट है। फोर्ट में एंट्रेंस के लिए 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है, और अंडर 15 फ्री है। अगर आप ऑनलाइन टिकट करते हैं जो यहाँ का साइड है, साइड डिपार्टमेंट का, उससे 35 रुपीज़ ही पर मेंबर लगता है। यस, अंडर 15 फ्री रहता है। अच्छा, यहाँ पे आके करते हैं तो 40। हाँ, यहाँ पे अगर आप कैश लेते हैं टिकट तो 40 रुपीज़, एंड आप बाय ऑनलाइन करते हैं तो 35 रुपीज़। हाँ, पहले सब यहाँ निवास करते थे। वो जो पैलेस आपको मैंने दिखाया वो विंटर रैनिंग पैलेस था। क्वींस का जो मैन पैलेस है वो मिड इन द वाटर, पानी के बीच में, जहाँ तक अभी किसी को जाना अलाउड नहीं करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ, समर 4 मंथ, गर्मी के 4 मंथ के लिए यहाँ पे थे, समर टाइम के लिए। और विंटर रैनिंग पैलेस के लिए कुंभा पैलेस जो अपन ने फर्स्ट में विजिट किया है। यस, सो तो यहाँ पर एक पंडित होते हैं राघव चेतन, उन्होंने कुछ गलतियाँ करने के कारण उसे इस किले से आउट कर दिया। आउट किया तो उसे एंट्रेंस के लिए नहीं मिलने वाला है मेवाड़ में। तो उन्होंने अपने मन के गुस्से को निकालने के लिए अलग अलग एनिमीज़ के पास वो जाना पसंद किया जो मेवाड़ पे अटैक करें। बट जिन मेवाड़ एनिमीज़ का मेवाड़ पे अटैक करने के लिए विन नहीं कर सकते हैं, तो उनको लगता है मेवाड़ बहुत पावरफुल है, हम विन नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कभी अटैक नहीं किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के पास पंडित जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी को मार करके दिल्ली पर रूलिंग किया था धोखे से। तो पंडित सारी महारानी की सुंदरता के बारे में खिलजी के सामने वर्णित करता है, और उसको इतना लोभी करता है कि खिलजी चित्तौड़गढ़ में आता है। तो खिलजी चित्तौड़गढ़ में आने से पहले 1301 में रणथंभौर फोर्ट पे अटैक करते हैं। वहाँ के राणा होते हैं हमीर सिंह जी, और वहाँ की उनकी वाइफ होती है रंगा देवी। तो रंगा देवी ने उस समय जल जौहर किया था। जब खिलजी चित्तौड़गढ़ में आता है तो महाराणा को मैसेज भिजवाता है कि हमने आपकी महारानी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है, एक बार उसका फेस दिखा दीजिए। लेकिन राजपूत लोग स्वाभिमान से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो फर्स्ट टाइम खिलजी को हरा के भेज दिया। सेकंड टाइम खिलजी आया, ये देखिए
सेकंड टाइम खिलजी इनसाइड फोर्ट में आउटसाइड में आता है और मैसेज करता है, लेकिन राजपूत लोग उनसे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन थर्ड टाइम वो बैदी जो यहाँ का पंडित थे राघव चतन, उन्होंने यहाँ के वेद बताए और मेन जो प्रॉब्लम था वो फूड का, खेती के बारे में, कि यहाँ फूड रसद का सामग्री इनसाइड फोर्ट में नहीं होता है। अगर आप आउटसाइड से रसद का सामग्री आप बंद कर देते हैं तो कभी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो खिलजी ने इस पूरे फोर्ट को 6 to 7 मंथ तक कवर कर लिया। इनसाइड फोर्ट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, खेती इनसाइड में नहीं होती थी। आप आइए थोड़ा। तो खिलजी से कॉम्प्रोमाइज़ के लिए राणा को मैसेज किया, क्योंकि हम कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो कुछ खाने को मिलेगा। लेकिन राणा चाहते थे कि दासी का चेहरा भी खिलजी को दिखा सकते थे। उसे नहीं पता कि महारानी पद्मिनी कौन सी है। उसे चाहते थे कि फैस में कि मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन जब उसे मैन एंट्रेंस पर ड्रॉप करने के लिए एज ए गेस्ट रतन सिंह जी जाते ही राणा जी, तो उसने धोखे से राणा को कैप्चर कर लिया। और कैप्चर करने के बाद में महारानी को मैसेज किया, आप हमसे शादी करेंगे तो ही आपके पति को छोड़ा जाएगा, अदरवाइज मार दिया जाएगा। बट पद्मिनी के कजिन ब्रदर एंड अंकल गौरा एंड बादल ने मिलकर एक रिटर्नली मैसेज किया कि हम शादी करेंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि यहाँ से मैडम स्टेयर उतर के बोट में बैठ के पैलेस में जाने का रास्ता होता था, तो हम शादी करेंगे। हाँ बोट महल में जाने के लिए रास्ता मिलेगी, 2 मिनट आप रुकेंगे क्योंकि ग्रुप्स हैं इनसाइड में। तो खिलजी ने पालकी अब किले में भेज दी। बट गौरा और बादल ने एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो जेंट्स होकर भी लेडीज़ वॉल्यूम बोल सकता है। उन सभी जेंट्स को लेडीज़ कॉस्ट्यूम पहनाकर पालकियों में इनसाइड आउटसाइड फोर्ट में भेजा गया। जो सैनिक रानी की आवाज़ में बोलता है कि हम आपके लिए आए हैं, हम आपके साथ चलेंगे, उससे पहले हम राणा से मिलेंगे। जब उन्हें राणा से मिलवाया गया, राणा को सारी चालाकी बता दी गई, राणा को इनसाइड फोर्ट में मिक्स किया जाता है। बट खिलजी का माइंड डाइवर्ट होता है, इतनी सारी पॉपुलेशन को हम अगर लेके जाते हैं तो इनको खाने के लिए भी देना होगा, इनको रहने के लिए देना होगा, तो क्यों ना जिसकी रिक्वायरमेंट है उसी को साथ में ले जाए, वो हमारे पास है। तो 1 by 1 चेक किया तो क्वींस नहीं मिली। उसको लगता हमारे साथ धोखा हो गया है। राजपूत जेंट्स जो कि हर हर महादेव जे एकिंग दीवान का नारा लगाते हुए लेडीज कॉस्ट्यूम निकाल करके युद्ध में टूट पड़ते हैं। युद्ध का डिसीजन कभी भी 1 days 2 days में नहीं होता है। तो उससे 1 to 6 मंथ में समथिंग 16,000 लेडीज़ ने इनसाइड फोर्ट में जौहर किया। खिलजी इनसाइड फोर्ट में आया, राख खड़िया देख के क्रोधित हुआ कि जिस रानी को पाने के लिए मैंने इतना वेट एंड वॉच किया है और रानी मुझे नहीं मिली तो किला मेरे किस काम का है। तो उसने अपने बड़े बेटे खिजिर खान को यह फोर्ट हैंड ओवर कर दिया। खिजिर खान ने 10 years रूलिंग किया। 1326 में महाराणा हमीर सिंह सिसोदिया ने इस फोर्ट को विन किया। खिजिर खान ने फोर्ट का नाम रख दिया खिजराबाद और हमीर सिंह सिसोदिया ने नाम रखा चित्तौड़गढ़। जो এই যে ঘরে আমরা প্রবেশ করছি এর জানলা দিয়েই এখন আমরা যে প্যালেসটা দেখছি এটাই রানী পদ্মিনীর সামার প্যালেস। রানী এখানে গরমকালে বসবাস করতেন এবং যাতায়াতের মিডিয়াম ছিল নৌকা। এতক্ষণ যে ঘরের জানলা দিয়ে আমরা রানী পদ্মিনীর সামার প্যালেস দেখছিলাম সেটা এই রাস্তা দিয়েই যেতে হয়। এই রাস্তা দিয়ে ওই ঘরের ভেতরে ঢুকে জানলা দিয়ে রানী পদ্মিনীর প্যালেস দেখে এখন আমরা বাইরের দিকে জানানা প্যালেস দেখতে যাচ্ছি। ये बालकनी गवर्नमेंट ने रीमेंटेनेंस किया है। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये उनकी लेडीज़ की जो प्रजा रहती थी ना जनाना, हाँ। उनके पैलेस से, उनके रूम से पहले यहाँ रहते थे। बट ये थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ने रीमेंटेनेंस किया है। अच्छा, ये समर पैलेस है रानी का। रानी का समर पैलेस मिड इन द वाटर, पानी की। ये उनकी दासियों प्रजाओं के पैलेस है। ये प्रजाओं के पैलेस है, वो वाटर वाला महारानी का समर पैलेस। पैलेस। यस मैडम, बट वो भी रीमेंटेनेंस है अबाउट 1965। अच्छा, चलो सही है, देखने को तो मिला हमको। ये लेडीज़ के लिए वॉशरूम्स होते थे। আর এটা ওয়াশরুম ছিল তখনকার দিনে, মেয়েদের ওয়াশরুম। এবার আমরা বেরোচ্ছি। ये सब रीमेंटेनेंस है मैडम। ये कौन सी जगह है? ये वही पैलेस का ही पार्ट है। यहाँ सभी रूम्स बने हुए थे टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसको रेनोवेशन किया गया, तो इसका राउंड वाइड डिजाइन दिया गया। এখান দিয়ে ঢুকেছি, এখান থেকেই বেরোচ্ছি। এখন আমরা বেরোচ্ছি। রানী পদ্মিনী প্যালেস দেখা হয়ে গেছে।
পদ্মিনী প্যালেস থেকে বেরিয়ে ওই যে দূরে মন্দির দেখতে পাচ্ছেন ওটাই মা কালীর মন্দির, আর আমরা ওই সাইড দিয়েই এসছিলাম পদ্মিনী প্যালেস দেখতে। এখানে নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেক জায়গায় গাড়ি করে নামতে হয়, বা অটো, গাড়ি বা অটো যেটা আপনার ভেহিকেল, সেখানে নামতে হয়, নেমে আবার গাড়িতে উঠে নেক্সট স্পটে যেতে হয়। তো আমাদের পদ্মিনী প্যালেস দেখা হয়ে গেছে, এখন সেই জন্য আমরা माजी आशुन নেক্সট যে আমাদের স্পট আছে সেখানে যাব। আমরা এখন প্যালেসের পেছন দিকে, পদ্মিনী প্যালেসের পেছন দিকে একটা জায়গায় এসেছি, সেইখান থেকে রানী পদ্মিনীর যে প্যালেসটা আরও ভালো দেখা যাচ্ছে, আমি আপনাদের দেখাবো আর ফটোগ্রাফিও করব। এখন যে প্যালেসটা আপনারা দেখছেন, এই যে জলের মধ্যে যে প্যালেসটা, এই প্যালেসটাই হচ্ছে রানী পদ্মিনীর অ্যাকচুয়াল প্যালেস। এই প্যালেসটা জলের মধ্যে এই কারণে, কারণ এখানে রানী সামারে থাকতেন, তাই প্যালেসটাকে ঠান্ডা করার জন্য জলের মধ্যে প্যালেসটা রাজা বানিয়েছিলেন। তো এটা হচ্ছে রানী পদ্মিনীর অ্যাকচুয়াল প্যালেস। আর বাকি আমরা ওই যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন, ওই জানলা দিয়েই প্যালেসটা দেখেছিলাম তখন। ওই বিল্ডিংটা দাসী এবং অন্যান্য রানীর যারা সহকারী ছিলেন তাদের জন্য। আর এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল রানীর সামার প্যালেস। সামারে রানী এখানে থাকতেন, আর উইন্টারে কুম্ভা প্যালেসে যে জানানা ভাগটা আমি দেখিয়েছিলাম, জানানা প্যালেস যেটা দেখিয়েছিলাম, রানী সেখানে থাকতেন। तो सब लोग सोच समझ के अपना कार्य करते थे। राणा के पास प्रजा की कमी नहीं थी। ये सब राइट में भी आपको देखने को दासी का पैलेस है। अच्छा, किसका पैलेस है? दासी जो लेडीज रहती थी ना, ये बैक साइड एरिया विजिट कर रहे हैं मैडम अपन भी। अच्छा, फ्रंट अभी सबसे लास्ट में अपन चलेंगे। और आपने कभी हाड़ी रानी का नाम सुना है? नहीं याद हाड़ी नहीं आ रानी, उनका रियल नेम होता है सहल कंवर। रहा। अच्छा, बहुत सुंदर रानी होती है। उनके हस्बैंड होते हैं रतन सिंह जी चुंडावत। अच्छा। उनका नया नया शादी हुआ था और उनके फोर्ट पे औरंगजेब का अटैक होता है। तो राणा जी को ये लगता है कि अगर मैं सुंदर रानी की रक्षा नहीं करूंगा, दुश्मन मेरी रानी को उठा के लेके जाएंगे। तो राणा जी प्रजा को कहते हैं कि आप लड़ने जाइए, राणा रानी की रक्षा करेगा। तो प्रजा कहती है कि राणा जी नहीं लड़ेंगे तो प्रजा भी लड़ने के लिए नहीं जाएगी। तो राणा जी को प्रजा के साथ मिलकर बहुत मनाते हैं। तो राणा जी कहते हैं मैं युद्ध में जाऊंगा, लेकिन रानी की कुछ ऐसी निशानी मेरे पास होनी चाहिए, जब जब मुझे रानी की याद आएगी मैं उसको देख के फील कर सकूं महारानी मेरे साथ में। तो रानी उसके लिए एग्री हो जाती है और रानी निशानी देने के लिए अपने रूम में जाती है। तो कहा जाता है कि ये रानी की कहावत है कि चुंडावत मांग्यो सेनानी, सर काट दे दियो शतरानी। रानी ने अपना सिर काट करके राणा जी को थाल में सहकर भेज दिया, आप जाइए, आप लड़िए, आप मेरी चिंता मत करिए। ये वो मेवाड़ है, ये भी नानी का तालाब बना हुआ है। अच्छा, और इस दुर्ग के बारे में ये भी कहा जाता है कि जौहरी बिखरी राख कटी, बलिदान हुआ बेथा कटी। जौहर की राख भी इतनी बिखरी थी जिसकी कोई काउंटिंग नहीं थी, काउंटिंग नहीं कर सकते थे, और बलिदान भी इतने हुए थे जिसका कोई काउंट नहीं किया जा सकता है। ये राइट हैंड साइड में फॉरेस्ट एरिया जिसको अभी गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मतलब जानवर रहते हैं क्या? नहीं मैडम, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये 2016 से बंद है अभी मैडम। अच्छा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी पे भी आप घूम रहे हैं, हाँ। अंकल हॉर्न देना है ना आगे से, कोई संडे है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और राइट में जो बाउंड्री है वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये अभी अपन बैक साइड से फ्रंट साइड की ओर चल रहे हैं। ओके। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी आता है ना, जहाँ से ऊपर से दिख जाता है पूरा? वो बैटल ग्राउंड का व्यू तो अभी आपको आगे से देखने को मिलेगा। अच्छा, ये सामने में मंगलेश्वर महादेव, और उसके सामने पूरा बैटल ग्राउंड और फार्मिंग एरिया है। हाँ यही वाला है। हाँ जी, अभी अपन थोड़ा आगे से रुक कर देखेंगे। यही जगह मैं भी रुकी थी। লিদা, এখন আপনাদের যে জায়গাটা আমি দেখাবো, আমরা রানী পদ্মিনীর মহল থেকে চলে এসেছি। এখন যে জায়গাটা আমি দেখাবো সেটা হচ্ছে ব্যাটেল গ্রাউন্ড। यस, ये पूरा बैटल ग्राउंड है मैम। ঠিক है। सारी वो राजा लोग अपने अंडर में खेती रखते थे ताकि प्रॉब्लम होने पर खेती उनका मैन उनके पास में रहेगा, और बैक साइड में पूरा बैटल होता था। मतलब ये जो फ्रंट वाला जो एरिया है इसमें वॉल खेती है होना- उसके हाँ, ये तो इसके बीच में फॉरेस्ट एरिया समथिंग 1 किलोमीटर का, हाँ। देन बैटल ग्राउंड है। ओके, तो फर्स्ट फार्मिंग एरिया, हाँ, और उसके पीछे में बैटल ग्राउंड, उसके पीछे। और वो देखिए वो अरावली रेंज है, हाँ, और ये आगे वाला छोटा वाला हिल्स आप देख रहे हैं। हाँ। जस्ट इमेजिन 1 पर्सन इज स्लीपिंग, माउथ, टमी एंड लेग। हाँ, एक नेचुरल हिल है।
ये वाला ना? हाँ ये वाला, ये देखिए माँ जी, ये सर हो गया, ये पेट और ये हाँ। अच्छा। एक नेचुरल हिल स्टेशन कुंभकर्ण पहाड़ी कहा जाता है। এটা আমাদের গাড়ি। ना मैडम, नो कॉस्ट चार्ज है। अगर आप मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं तो आपका एंट्री है, टिकट है। हाँ। अदरवाइज आप आउटसाइड से आप 24 आवर आप घूम सकते हैं। अच्छा, यहाँ से भी ऊपर चढ़ सकते हैं? मैडम यहाँ से तो नहीं, फ्रंट एंट्रेंस गेट है, वहाँ से बाई वॉक आप चल सकते हैं, क्योंकि वहाँ से 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर अलाउड नहीं होते हैं। अच्छा, तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? ये तो उसी जहाँ से आपने एंट्री किया वहीं से आ रहे हैं। घूम के? हाँ, घूम के ही आ रहे हैं। আমাদের চিত্তরগড় ঘোরা হয়ে গেল। এখন আমরা যাচ্ছি উদয়পুরে। উদয়পুর যাওয়ার পথেই আমরা চিত্তরগড় ঘুরলাম। আমরা বেরিয়েছিলাম জয়পুর থেকে 9:15 আর এখানে আমাদের পৌঁছাতে প্রায় 4:30 বেজে গেল। এর মধ্যে শুধুমাত্র আধ ঘন্টা 40 মিনিট আমরা ব্রেক নিয়েছিলাম স্ন্যাক্স খাওয়ার জন্য, লাঞ্চও করিনি। তো তাতেই প্রায় 7 ঘন্টা, মোর দ্যান 7 আওয়ার্স ইনফ্যাক্ট লেগে গেল। তো চিত্তরগড় ঘোরা শেষ। এখন বাজে ঘড়িতে 5:50। আমরা কটা থেকে স্টার্ট করেছিলাম মা? 4:10-15 থেকে আমরা স্টার্ট করেছিলাম চিত্তরগড় ঘোরা, আর এখন বাজে 5:50। আমাদের ঘোরা হয়ে গেছে। লাস্টে একটা টেম্পল হয় যেটাকে টাওয়ার অফ ফেম বলে, তার সাথে একটা জৈন টেম্পলও আছে, ওটা আমরা দেখিনি, ওখানে আর দাঁড়াইনি। বাকি মোটামুটি মেন যে স্পটগুলো আছে সেগুলো কভার করেছি, আপনাদেরকেও দেখিয়েছি, আশা করবো আপনাদের ভালো লেগেছে। একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আমার মনে হলো যেটা আমি মিস করেছি, দেওয়া দরকার, সেটা হচ্ছে গাইড। চিত্তরগড় এই নিয়ে আমি সেকেন্ড টাইম এলাম। আমি 2023-এর সেপ্টেম্বরে, মানে অক্টোবরে এসেছিলাম, ফার্স্ট অক্টোবর এসেছিলাম। আবার আজকে এলাম, আজকে হচ্ছে 22শে ডিসেম্বর 2024। তো সিজন অনুযায়ী গাইডের রেট কিন্তু আমি দেখছি চেঞ্জ হয়েছে। তখন আমার যতদূর মনে পড়ছে অ্যারাউন্ড 500 আমাকে দিতে হয়েছিল, 400 কি 500 এক্স্যাক্টলি মনে নেই। আজকে আমি দুজন গাইড সাহেবের সাথে কথা বলেছি, একজন 1000 চাইলেন, আমরা যাকে হায়ার করেছিলাম উনি নিলেন 750। তো ইটস নেগোশিয়েবল, আপনি নেগোশিয়েট করে নেবেন। আর যেটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, আপনি যখন ফোর্টে উঠছেন, যদি আপনাদের চেনা কেউ থেকে থাকে বা আপনাদের ট্যুর যে অর্গানাইজ করছে বা যিনি ড্রাইভার সাহেব আছেন ওনার যদি চেনা কেউ থেকে থাকে তাহলে তো খুবই ভালো। যদি আপনারা প্ল্যান করেন যে এখানে এসে গাইড নেবেন, গাইড এই জন্যই নেওয়া জরুরি কারণ হিস্ট্রি না জানলে ইউ উইল অনলি সি দ্য মনিউমেন্টস, ইউ ওয়ন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিগনিফিকেন্স। ওই জন্যই গাইড নেওয়াটা জরুরি। আর স্টোরিগুলো খুব ইন্টারেস্টিং, ঘটনাগুলো খুব ইন্টারেস্টিং, যেটা জানার প্রয়োজন আছে, নইলে চিত্তরগড়ের মাহাত্ম্য বা চিত্তরগড়ের ঘোরাটা ইনকমপ্লিট থেকে যায় বলে আমার পার্সোনাল মতামত। তো সেক্ষেত্রে গাইড নেওয়া জরুরি, গাইড থাকাটা। তো অনেকেই আপনাকে অ্যাপ্রোচ করবে, আপনি কিন্তু সবাইকে হায়ার করবেন না। এখানে অনেক লোকালসও আছে যারা গাইড হয়ে অ্যাপ্রোচ করে, বাট দে আর নট দ্য গভর্নমেন্ট রেকমেন্ডেড গাইডস। যারা গভর্নমেন্ট রেকমেন্ডেড গাইড হয় তাদের কাছে গভর্নমেন্টের রেকমেন্ডেশনে আইডি থাকে এবং ওদের কাছে একটা প্ল্যানও থাকে যে কোন কোন পয়েন্টস ওরা দেখাবে। তো সেগুলো ওই আইডি বা প্ল্যানটা আছে কি না, মানে আইডি কার্ড গলাতেই ঝোলানো থাকে, আর ওরা একটা প্ল্যানও দেখা একটা কার্ডের মধ্যে, সেখানে সব পয়েন্টসগুলো লেখা থাকে। তো এগুলো যাচাই করেই আপনারা গাইড হায়ার করবেন। গাইডের প্রাইস তো আমি বললাম সিজন অনুযায়ী চেঞ্জ হয়। অফ সিজনে অ্যারাউন্ড 500, আর অন সিজন ডিসেম্বর ইজ দ্য পিক সিজন। ডিসেম্বরে এটা মানে 1000ও হতে পারে, 750 হতে পারে, 850 হতে পারে, ডিপেন্ডিং অন ইয়োর বার্গেনিং স্কিল আর অ্যাভেলেবিলিটি অফ গাইড। তো এটা গেল একদিন। আর উদয়পুর থেকে যদি আপনি চিত্তৌড় আসেন, সময় লাগে 2.5 থেকে 3 ঘন্টা, ট্রাফিক কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে। আপনি যদি জয়পুর থেকে আসেন, ইট টেক্স অ্যারাউন্ড 7 আওয়ার্স। তো আমরা চিত্তরগড় ঘুরলাম, এখন আমরা নিচে নামছি, নেমে এখন আমরা উদয়পুর হোটেলে যাব। দেখা যাক কটায় পৌঁছাই, আইডিয়ালি 9টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া উচিত, কিন্তু আজকে ট্রাফিক বেশি আছে। দেখা যাক। আমি লাস্ট টাইম যখন এসেছিলাম তখন এতটা ট্রাফিক ছিল না, আমার 2.5 ঘন্টা লেগেছিল আসতে এবং যেতে। আজকে দেখা যাক কতক্ষণ লাগে, আমি আপনাদের আপডেট দিতে থাকবো।
কথা বলে রাখি, আমরা আজকে একটু তাড়াতাড়ি করেই ঘুরেছি, তাই আমাদের 1 ঘন্টা 40-45 মিনিটে হয়ে গেছে। আপনি যদি একটু সময় নিয়ে ঘুরতে চান তাহলে 2 থেকে 2.5 ঘন্টা কিন্তু লাগবে। আমি যখন প্রথমবার এসেছিলাম আমি একটু সময় নিয়ে এসেছিলাম, আমার ওরকম 2.5 ঘন্টা মতো লেগেছিল, 2.5 নয় 2 ঘন্টা মতো লেগেছিল তখন। এখন তার থেকে 10-15 মিনিট কম লেগেছে তাড়াহুড়ো করে। আর ওটা কিন্তু ডে ট্রিপ হিসেবেই কাউন্ট হয়। যে কোনো আপনি যখন উদয়পুর থেকে আসছেন বা জয়পুর থেকে আসছেন চিত্তরগড়ে, তখন সেই দিনে কিন্তু আর কিছু প্ল্যান করা যায় না, ওটা কিন্তু পুরো সারা দিনেরই ট্রিপ হয়ে যায়, যাতায়াত কিলা ঘোড়া পুরোটা মিলিয়ে। তো আরামসে দেখতে গেলে 2 ঘন্টা, ম্যাক্সিমাম 2.5 ঘন্টা, ওর বেশি লাগবে না। 2 ঘন্টা ইজ মোর দেন এনাফ আই উড সে। আর আমরা যেরকম আজকে সবকটাই দেখেছি, একটু তাড়াতাড়ি করে দেখেছি, তো আমাদের লেগেছে 1 ঘন্টা 40 থেকে 45 মিনিট মতো। তো 2 ঘন্টা আমি ধরছি অন অ্যান অ্যাভারেজ ইজ এনাফ টু ভিজিট ফুল চিত্তরগড় ফোর্ট। আর যাতায়াত মিলিয়ে ইটস আ ফুল ডে ট্রিপ। সেদিন উদয়পুর হোটেল পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় 8:30 বেজে গেছিল। প্রচণ্ড ক্লান্ত থাকায় হোটেলে পৌঁছে ফ্রেশন আপ হয়ে ডিনার করে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। পরের দিন আমরা পুরো উদয়পুর সিটিটা এক্সপ্লোর করেছিলাম, সেই গল্প নিয়ে ফিরবো নেক্সট এপিসোডে। টিল দেন কিপ ওয়াচিং দি রোভার বং।